Good morning, students. Myself Akash Saxena, and I am back with Unit 1 of Part B Vocational Skills, and that is Introduction to IT and ITES Industry. Okay, देखिए हम जानते हैं that जितना भी IT सेक्टर है it has developed in all the areas. Okay ना? तो इसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं that which areas have developed with the help of IT. Okay, and session 1. Okay, first, that is introduction. Today, information and communication technology is an indispensable part of the modern society. This is digital era in which we use mobile devices to perform most of our daily tasks. It is difficult to think of any routine task without the use of digital devices. As we know ना that digital devices के बिना कोई भी यूज़ आज हम कोई भी यूज़ है कोई भी लाइफ को हम यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं ओके दैट IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन one of the world's fastest growing economic activities which facilitates faster transmission of information in various fields catering to our requirement. Okay, based on IT is the based on IT is the information technology enabled services, that is ITES. ITES stands for information technology enabled services. Okay, sector which has not only changed our impression as technology people on the international front but has also contributed of our nation's economy significantly. Okay, that यहाँ पे ये कहा गया है कि IT सेक्टर जो है वो ना केवल लोगों को टेक्निकली डेवलप्ड कर रहा है इसके साथ साथ ये हमारे नेशन की इकोनॉमी को भी इंक्रीज कर रहा है उसको बूस्ट कर रहा है. ओके, we shall explore the fundamentals of information technology, IT and IT enabled services. Then we will discuss about IT and IT enabled service, that ITES. Okay. Now move on second page, that is information technology. Okay. Information technology encompasses four basic operations. Okay. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनकम्पासेस फोर बेसिक ऑपरेशंस. फर्स्ट इज़ क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन, सेकंड इज़ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, थर्ड इज़ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड फोर्थ इज़ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. तो जो आईटी है, आईटी फोर बेसिक ऑपरेशंस पे वर्क करता है. दैट इज़ क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड exchanging information. So IT includes all types of technology used to manage information such as computer hardware technology and various software applications used to create, store and transfer information. IT में सभी टाइप की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो यूज्ड होती हैं मैनेज इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. इन सब की इंफॉर्मेशंस को आईटी जो है वो सेव करता है. ओके, कंप्यूटर्स टेक डेटा, कंप्यूटर जो है वो डेटा लेते हैं एंड इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट, प्रोसेस द डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन, उस डेटा को प्रोसेस करता है. ओके, एंड प्रोड्यूस द मीनिंगफुल रिजल्ट एज आउटपुट. तो आउटपुट होता है जो प्रोसेस डेटा होता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट. और इनपुट क्या होता है, इज द इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस given to the computer. Okay, input is the instructions given to the computer and then the data after processing, the result is called output. Okay, this output is information. Data refers to the facts or raw material. Data जो होता है refers कहलाता है वो facts और raw material which are processed, जिनको प्रोसेस किया जाता है टू गेट द इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए यानी पाने के लिए. जिस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए आप डेटा कोई भी रॉ मटेरियल या फैक्ट्स देते हो वो कहलाता है डेटा. ओके, number of items sold, unsold and returned in a shop is factual data of the stock in that shop. ओके, जैसे आप एक शॉप का एग्जांपल ले रहे हैं
तो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, अनसोल्ड एंड रिटर्न इन अ शॉप, ये सारा क्या है, डेटा है। ओके, आपने किसी को ये डेटा दिया और आपने कहा मुझे इसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, देन ही विल आस्क फॉर योर नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, ओके, एंड अनसोल्ड एंड रिटर्न sold items in a shop, okay, then we can draw various conclusion, okay, he or she can draw various conclusions out of this data set। इस डेटा से वो कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ला सकता है, उस डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट दे सकता है आपको, दैट आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ है पिछले साल के मुकाबले, ओके ना, और यहाँ पे आपको कितना गेन हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये चीज़ें। दिस कंक्लूजन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यही कंक्लूजन जो है कहलाता है इंफॉर्मेशन, ओके। देन नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा का एनालिसिस करना और इंफॉर्मेशन का मेक्स द बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस, प्लान्स एंड प्रेडिक्शंस फॉर फ्यूचर। डेटा का एनालिसिस करना और इंफॉर्मेशन जो है बेसिस बनती है फॉर मेकिंग डिसीजंस, प्लान्स एंड प्रेडिक्शंस फॉर फ्यूचर, ओके। देखिए, लेट अस सपोज दैट आपको इस साल के मुकाबले अगर नेक्स्ट ईयर या पिछले साल जो था कम प्रॉफिट हुआ है, देन यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस अबाउट दैट ना, और आगे फ्यूचर के भी डिसीजंस यहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं दैट वी वांट टू डू दैट बिजनेस और नॉट, ओके, हमें वो बिजनेस, वी शुड डू दैट बिजनेस और नॉट, हमें वो बिजनेस आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सर्कमस्टेंसेस देखने हैं। तो ये एनालिसिस ऑफ डेटा जो है वो हमें आगे हेल्प करता है डेटा अपने बिजनेस को या अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए, अगर आपने उसके रिगार्डिंग डेटा को प्रोसेस किया है, ओके। दिस हेल्प्स इन मेकिंग फर्दर बिजनेस स्ट्रेटजीज, और यही हेल्प करता है हमारी आगे बिजनेस स्ट्रेटजीज को बढ़ाने के लिए, ओके। दैट इज़ ऑल डिपेंड ऑन आईटी सेक्टर ना, क्योंकि आईटी के बिना, कंप्यूटर्स के बिना हम इन चीज़ों को सपोज भी नहीं कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, ओके, दैट IT इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न बिजनेस। IT जो है लगभग सभी मॉडर्न बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। मॉडर्न बिजनेस रन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ओके। जो मॉडर्न बिजनेस है रन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे रहता है, आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एवरी बिजनेस टुडे। हर एक बिजनेस के ये सारे एसेंशियल पार्ट्स हैं, क्या क्या, कंप्यूटर्स, नेटवर्क, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनके बिना कोई भी बिजनेस को रन करना आज तो पॉसिबल नहीं है। दैट एवरी बिजनेस, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या बीच का हो, मध्यम वर्गीय हो, नीड्स टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी टू कम्पीट। उसे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, उसे वहाँ पे पैसा खर्च करना ही पड़ेगा इन टेक्नोलॉजी में, टू कम्पीट मतलब कंपटीशन में रहने के लिए, ओके। इफ़ यू हैव 2 or 3 बिजनेस इन सेम इन योर मार्केट, देन if you want to compete, okay, if you want to compete, then you have to make your own investment on the computer technology। आपको कंप्यूटर्स पे या आईटी पे कुछ पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। आईटी brings a variety of benefits to a business, like automating most business operations, enhancing the customer relations, developing a business, our relationship with potential customers. This helps in reducing cost, improving efficiency, maximizing profit, minimizing waste, providing better services to customers, supporting better relationships with key partners, and allowing numbers of better guide the business, allowing customer to better guide the business, okay। तो IT brings a variety of benefits। IT जो है कई कई तरह के वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स लेके आता है टू बिजनेस में, जैसे कि ऑटोमेटिंग मोस्ट बिजनेस ऑपरेशंस, ज़्यादातर बिजनेस ऑपरेशंस को वो ऑटोमेटेड कर देता है, एंड एनहेंसिंग द कस्टमर रिलेशंस, और आईटी की हेल्प से हम कस्टमर रिलेशंस से क्या कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। कई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हुआ है जो यहाँ पे डायरेक्ट हम कस्टमर से रिलेट कर सकते हैं, तो डैट इज़ ऑल पॉसिबल ड्यू टू द आईटी ना। डेवलपिंग आ बिजनेस, आ रिलेशनशिप विद पोटेंशियल कस्टमर्स, ओके। तो इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करने में किसी भी चीज़ की, और एफिशिएंसी को बढ़ाता है,
प्रॉफिट को ज़्यादा करता है और वेस्ट को कम करता है। ओके, तो इन सब का क्या, कौन है रिस्पॉन्सिबल? IT। IT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट। ओके, next topic is the main topic, that is ITES, and that stands for, yes, information technology enabled services. Okay, okay. Business services whose quality is improved by incorporating information technology in the business system are called IT enabled services. Business services, वो business services whose quality is improved, जिनकी quality improve हुई है by incorporating information technology के help से, IT के help से जिनकी quality में improvement हुआ है in the business system are called ITES, Information Technology Enabled Services. Okay. And ITES is also called Web Enabled Services or Remote Services that cover the entire operation, which exploit information technology for improving efficiency of an organization. देखो, ITES is also called the वेब इनेबल्ड सर्विसेज, यानी वेब इनेबल्ड सर्विसेज, जो सर्विसेज पूरी की पूरी IT पे ही बेस्ड है, डेट कवर द एंटायर ऑपरेशंस। जैसे कस्टमर केयर इज द टोटली IT इनेबल्ड सर्विसेज, एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो पूरी की पूरी IT पे ही बेस्ड हैं, दैट आर कॉल्ड ITES. ओके, when business services are enabled, they provide a wide range of career options. जब बिजनेस सर्विसेज इनेबल्ड होती हैं तो वो प्रोवाइड करती हैं वाइड रेंज ऑफ कैरियर ऑप्शंस that include career opportunities in all enterprises and companies. जब बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, इनेबल्ड होती हैं, दे प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ कैरियर ऑप्शन। जब आप बिजनेस सर्विसेज एक्टिवेट होंगी, तो ठीक से एक्टिवेट होंगी, तो वो क्या करेंगी, कैरियर ऑप्शंस को भी बढ़ाएंगी। डेट इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल एंटरप्राइजेज एंड कंपनीज। सच अपॉर्चुनिटीज़ इंक्लूड्स कॉल सेंटर। आई टोल्ड यू ना डेट कॉल सेंटर इज़ द मेन ITES। ITES पूरा डिपेंडेंट है। पेरोल्स, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, रेवेन्यू क्लेमिंग प्रोसेसिंग, medical billing, coding, medical transcription, legal databases, back office operations, content development, GIS, geographic information system, web services and HR services, etc. तो these services are totally web enabled services. ये services आज के टाइम में पूरी की पूरी इंटरनेट पे ही इनेबल्ड है। ओके, इंटरनेट पे ही बेस्ड है, जैसे कि कॉल सेंटर, पे रोल्स, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, रेवेन्यू क्लेम्स प्रोसेसिंग, मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ओके, बैक ऑफिस ऑपरेशन, ये सारा वर्क कंप्यूटर पे ही होता है, वी नो डेट ना। कंटेंट डेवलपमेंट, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS भी आप समझ सकते हैं, वेब सर्विसेज, ये सारी जो हैं IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं। और इनका वर्क करना, इनका सफिशेंट रूप से वर्क करना, एफिशिएंटली वर्क करना IT पे ही यहाँ पे डिपेंडेंट है। और जब ये ठीक से एक्टिवेटेड होंगी तो ये क्या करेंगी, कैरियर ऑप्शंस को इंक्रीज़ करेंगी। तो ITES is defined as outsourcing of processes that can be enabled with information technology and covers diverse area like finance, HR, administration, healthcare, telecommunication, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। ITES जो है डिफाइंड एज आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोसेस। IT जो इस टाइप की प्रोसेस हैं डेट कैन बी इनेबल्ड, जो केवल और केवल इनेबल्ड हो सकती हैं IT से, एंड कवर करती हैं डाइवर्स, एक बड़ा एरिया लाइक फाइनेंस, HR, एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ केयर, टेली कम्युनिकेशन तो पूरा का पूरा IT पे ही बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग भी IT पे बेस्ड हो गया है अब। ओके, तो IT इनेबल्ड सर्विसेज रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट को भी रिड्यूस करती है, एंड expense radically and improve services standard by many degrees. In this process, internet service provider plays a vital role in providing B2B, okay, e-commerce solution. B2B, what stands for B2B? Yes, B2B is that आप डोर टू डोर अगर जा रहे हैं और ई कॉमर्स सॉल्यूशन घर पे आपके पहुंच गया है,
that is called B2B. ITES offers different services integrated in a single delivery mechanism to end users. The services may include medical transcription, customer relationships, management, data entry, and data processing. Okay, B2B. B2B stands for business to business e-commerce solution. Okay, data warehousing, IT help desk services, enterprising resource planning and telecommunication सर्विसेज. तो ये सब आईटी से ही इनेबल्ड हुआ है. ओके, जितना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डेटा वेयर हाउसिंग है, आईटी हेल्प डेस्क है, तो ये सारा ITES, IT इनेबल्ड सर्विसेज. ओके, so now this is the first part of that unit. Okay, now we will meet with the second part of that video later. Okay, till then, thank you.